Good morning, everybody. I hope everyone is doing well and you people are safe, your family is safe in the pandemic. I hope that after the first session, all chefs are taking some pride for the exclusive skills they possess. Hi, I'm Rishabh and I'm the lecturer for food production at FHRA IHM, and I welcome you back to this capacity building program hosted by FHRI IHM for the second session of food production on food contaminants and adulterants. Before starting the session, I would like to state this lines where for Bhagavad Confucius. Life is very simple, but we insist on making it complicated. Life बहुत simple है, but हमने इतनी चीजें कर करके उसको complicate कर दिया है. Why am I saying this? नहीं, we are not philosophy. हम philosophy class में नहीं है. We are here in a class of food production because we have made our food so complicated now that sometimes it poses a threat to our life also. With this thought in our mind, how safe is your food from farm to plate? How our food is safe or not? We should think about that. As a chef, it is our pride and honor that we provide the safest food possible to the guests. On 7th of June 2020, the World Safety Day, WHO last year जब आया था इसको लेकर फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये स्लोगन के साथ WHO लास्ट ईयर ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आया था. हमने देखा कि कैसे फूड को सेफ बनाना है फ्रॉम farms to even plates and to producing safe food. This year also, they have come with a slogan. They have stepped one more step ahead. Safe food now for a healthy tomorrow. मतलब कल के लिए, कल एक हेल्दी कल के लिए आज हमें अपना फूड सेफ बनाना होगा. Safer food now for a healthy tomorrow. Food safety is everyone's business. With that in mind, let's start with our first question, that is, what is safe food? We always think about that, how safe is our food or what is safe food now? Usually, हमारा जो खाना है, हमारा food है that is coming from plants, animals और fungal origin. Plants से हमारे vegetables आते हैं, fruits आते हैं, leafy vegetables आ रहे हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, even small to small herbs are coming from plant source. From animal, pork, chicken, seafood, fishes, scampis, shrimps, prawns, lot of seafood is coming, lot of meat is coming, and our fungal origin food is our mushrooms, portobello, button mushrooms, iniokii, truffle. These are all mushrooms that are having fungal origin. Safe food must provide nutritional support. जो न्यूट्रिशन चाहिए हमें जीने के लिए, वो प्रोवाइड करता है सेफ फूड. सेफ फूड फॉर इंजेक्शन, इट इज सेफ फॉर इंजेक्शन एंड डाइजेशन. मतलब जब भी हम खाना खा रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, निगल रहे हैं, या फिर डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, इट इज सेफ for ingestion as well as digestion. And last, safe food should be free from any kind of contamination and adulteration. ये सब qualities होती हैं safe food की. Safe food has a very vast and significant impact on the wide range of social, political issues, including sustainability, biological diversity, economics, population growth, water supply,
एंड एक्सेस टू फूड। हम जब सेफ फूड की बात करते हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज पे, इवन सस्टेनेबिलिटी, हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे फूड का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम कई बार अखबार में देखते हैं, पढ़ते हैं, या फिर न्यूज में हम देखते हैं, सुनते हैं कि कुछ गंदा पानी पीने से बच्चों की तबीयत खराब हो गई, गंदा खाना खाने से बच्चों की तबीयत खराब हो गई, कुछ लोगों का तबीयत खराब हो गई गंदा खाना खाने से, हॉस्पिटल भर्ती है। ये सब इम्पैक्ट करता है हमारी सोसाइटी को, सस्टेनेबिलिटी को, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को। और इसीलिए हम बोलते हैं राइट टू सेफ फूड इज राइट टू ह्यूमन बीइंग और राइट टू लाइफ। तो सेफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी। और हम जानते हैं कि सेफ फूड का क्वालिटीज क्या क्या है, वो प्लांट से है, फंगस से है, एनिमल से है, आते हैं। दे शुड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ह्यूमन बीइंग एंड लिविंग बीइंग्स। दे आर सेफ फॉर ingestion and digestion, and they are free from contamination and adulteration. Now coming to this topic, food adulteration, ने बात की अभी भी। अडल्ट्रेशन है क्या? हम बात करते हैं जब अडल्ट्रेशन की, हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कई बार कि खाने में मिलावट पकड़ी गई, दालों में कंकड़ पकड़ा गया, मसालों में रंग, भूसा, लकड़ी का बूरा, ये सब मिला दिया जाता है। टेस्टिंग में दूध में पानी मिलाते हुए पकड़ा गया। तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। तो फूड अडल्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस by which quality or the nature of a given substance is reduced। मतलब हम कुछ उसमें ऐसे पदार्थ मिला रहे हैं खाने में जो उसका नेचर खराब कर रहे हैं, क्वालिटी खराब कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम अडल्ट्रेशन। हम देखते हैं अडल्ट्रेशन इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस होता चला जा रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को चेक करिए, क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदिए, क्योंकि आजकल जहां देखिए मिलावट का जमाना आ रहा है। वेट, दाल का, चावल का वेट बढ़ाने के लिए कंकड़ मिट्टी ऐड कर दी जाती है, मसालों में रंग ऐड कर दिया जाता है। इसमें से हम जब वाइटल एलिमेंट्स कम कर देते हैं उसको बोलते हैं हम फूड अडल्ट्रेशन। फूड प्रोडक्ट्स विच ऑल्सो फेल्स टू मीट लीगल स्टैंडर्ड्स। कुछ हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनका एक लीगल स्टैंडर्ड है, उस लीगल स्टैंडर्ड को अगर कोई भी प्रोडक्ट मीट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स दैट फूड इज अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेशन में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल तो थोड़ा ठीक है, धोखे से कभी दूध में पानी ऐड हो गया या कुछ और ऐड हो गया, बट इंटेंशनल अडल्ट्रेशन इज हार्मफुल, इट इज अ क्राइम और इस पे सजा भी है। अडल्ट्रेंट्स में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल हमने बात की भी। जो इंटेंशनल अडल्ट्रेंट्स हैं, इट इज अ विलफुल एक्ट। मतलब हम जानबूझ के अच्छे खाने में कुछ ऐसे पदार्थ मिला रहे हैं जो उसे खराब कर रहे हैं, क्वालिटी कम कर रहे हैं। हो सकता है हम दूध में पानी ज्यादा मिला रहे हैं, 2 लीटर दूध है हमारे पास, 1 लीटर पानी मिला दिया, दैट इज अडल्ट्रेशन। उससे क्या हुआ? उससे हमने दूध का क्वांटिटी बढ़ा दिया प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपना। ये अडल्ट्रेशन हम देखते हैं मसालों में मिट्टी मिला देना, मार्बल्स मिला देना चावल में, ड्रिप्स, स्टोन, मड, चॉक पाउडर, इवन वाटर एंड मिनरल्स, कोल टार, ये सब हम ऐड कर रहे हैं खाने में जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। एंड दैट इज व्हाई अडल्ट्रेशन इज अ क्राइम। जब हम बात करते हैं दूध की, दूध में पानी डालते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो रहा है। तो जब होटल में हम जब काम करते हैं तो हमारा कोशिश होती है हम क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करें। जो भी क्वालिटी रॉ मटेरियल है उस पर एफएसएसआई का मार्क हो, आईएसआई का मार्क हो या फिर आईएसओ का मार्क हो, उस प्रोडक्ट को यूज करें। बिकॉज क्वालिटी फूड से ही रिलेटेड है हमारी खुद की ब्रांड वैल्यू।
अगर हम गेस्ट को अडल्ट्रेटेड खाना दे रहे हैं, खराब खाना दे रहे हैं, अनसेफ फूड दे रहे हैं, तो हमारी खुद की ब्रांड वैल्यू कम होती है। इसीलिए ये एक लाइसेंस में भी है, और हमें खुद से भी करना चाहिए कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज करें, रॉ मटेरियल यूज करें, दैट शुड बी ऑफ क्वालिटी, दैट शुड बी एक्चुअली दैट शुड बी एफएसएसआई का है, उस पर टैग होना चाहिए दैट शोज कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। फूड कंटामिनेंट्स, अब ये फूड कंटामिनेंट्स क्या चीज होती है? हम देखते हैं कि खाने में एडल्ट्रेंट्स पड़ने लगे, अब कंटामिनेशन की भी बात आने लगी है। तो फूड कंटामिनेशन refers to presence of harmful chemicals and microorganisms in food which can cause great illness to the guests and customers. मतलब हम जब खाने में कंटामिनेशन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि खाने में वो केमिकल्स और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं जो कि खाने को खराब कर सकते हैं और गेस्ट को इल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर्स को इल कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। दैट इज कंटामिनेशन, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज इलनेस। ये कंटामिनेशन हमारे फार्म से लेकर हमारे टेबल तक या फोक तक कहीं भी हो सकता है। फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, प्लांट से कंटामिनेशन हो सकता है, सॉइल से, फूड हैंडलर, हमारे हाथ, हम खुद फूड हैंडलर्स हैं, एज अ शेफ्स वी आर फूड हैंडलर्स, एंड हमारे हाथ से भी कंटामिनेशन हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड्स, टू वॉश एंड सैनिटाइज आवर ओन हैंड्स बिफोर एंटरिंग द किचन। इवन कंटामिनेशन मशीनरी इक्विपमेंट से भी हो सकता है। जो हम चॉपिंग बोर्ड यूज कर रहे हैं, जो हम नाइफ यूज कर रहे हैं, चॉपर्स, अदर इक्विपमेंट्स, ब्लेंडर्स, कटर्स, व्हाटएवर, रोबोकुक, इन सब से कंटामिनेशन हो सकता है। आफ्टर एंटरिंग द किचन वी शुड मेक श्योर आवर होल किचन इज सेफ एंड कंटामिनेंट फ्री। कंटामिनेशन रोकने के लिए आजकल हम सैनिटाइज करते हैं अपने इक्विपमेंट्स को, क्लोरीन यूज करते हैं, डिफरेंट आजकल तरीके आ गए हैं जिससे हम अपने इक्विपमेंट्स, नाइफ्स, हैंड्स, सब कुछ सैनिटाइज कर सकते हैं। सो कंटामिनेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड into 3 different categories. We have 3 different categories of contaminants. Types of contaminants: physical, chemical and biological. ये 3 तरह के contaminants हम नॉर्मली यहाँ पर देखते हैं, कहीं भी हम जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर हम खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैकेजिंग में, या हर जगह बेसिकली 3 टाइप ऑफ कंटामिनेंट्स देखे जाते हैं। पहला है फिजिकल कंटामिनेंट। ये जो कंटामिनेंट है, दिस कंटामिनेंट refers to any foreign object that can contaminate the food at any stage of production. चाहे खाने में मिट्टी गिर जाए, पेबल या पत्थर गिर जाए, कंकड़ आ जाए, इवन काम करते समय हमारे नाखून टूट जाए, कोई ग्लासवेयर टूट के खाने में गिर जाए, हमारे खुद के बाल खाने में गिर जाए। इवन कई बार होता है हम शेफ काम कर होते हैं, हमारा हाथ कट जाता है, हम बैंडेज लगाकर काम करना शुरू करते हैं, तो बैंडेज कभी कभार हम ध्यान नहीं देते हैं तो खाने में गिर जाएगा, या फिर उससे खून निकलने लगा, वो खून खाने में गिर गया। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ फिजिकल कंटामिनेशन। हमारे बाल गिरते हैं, उसमें हो सकता है बैक्टीरिया या फंगस हो, उससे बायोलॉजिकल कंटामिनेशन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें कंटामिनेट करती है हमारे खाने को। आप सोचिए, आप खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं, उसमें कंकड़ आ गया, कितना हार्मफुल है हमारे मुंह के लिए। या फिर प्लेट टूट के उसका टुकड़ा आ गया हमारे मुंह में। इसी से किस्सा आता है
जब मैं होटल में काम कर रहा था, एक बार हम बिरयानी निकाले थे और जल्दीबाजी में एक साथी ने एक कांच की प्लेट ली, सेरेमिक प्लेट ली, उसको उससे बिरयानी निकालना था। उसी टाइम शेफ आए, उसने रोका कि प्लेट, कांच की प्लेट से हम कभी खाने को नहीं निकाल सकते, उसका कांच चिप कर जाए, उसका मीट से टकराया, बोन से टकरा के टूट जाए, तो पूरी पूरी बिरयानी हमारी खराब हो जाएगी। एक बार हम काम कर रहे थे, तो स्पाइडर जो वेब होता है, जो चाइनीज वेब होता है, चाइनीज और छन्नी से बोलते हैं हम, उसमें तार निकल रहा था, वो तार गिर गया खाने में। ये सब फिजिकल कंटामिनेंट्स हैं। तो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए, काम करना चाहिए। इवन हमारे इक्विपमेंट्स को भी चेक करना चाहिए रेगुलरली कि कोई टुकड़ा तो नहीं निकल रहा है, कोई तार या कोई इक्विपमेंट से कुछ टूट खाने तो नहीं गिर जा रहा है, तो वो चीज भी हमें चेक करनी चाहिए। दैट इज पार्ट ऑफ फिजिकल कंटामिनेशन। हमें नाखून टाइमली काटने चाहिए, जिससे कि इसमें धूल मिट्टी या फिर कुछ भी फंगस बैक्टीरिया ना डेवलप करे। Now coming to chemical contamination, that refers to all the chemicals, pesticides, insecticides that we spray on the farms, on the crops. जो भी क्रॉप हमारे फार्म में हो रहा है उसके ऊपर हम खूब स्प्रे करते हैं एंटी इंसेक्टिसाइड्स का, फंगसाइड्स का, जिससे कि उसमें कीड़े या फिर फंगस ना लगे। ये सब शुरू हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से, कि हमने खूब केमिकल्स यूज किए, यूरिया, अमोनिया, लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स। हमने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा ली, बट इससे एक दिक्कत होना शुरू हो गई कि वो खाने के अंदर वो केमिकल्स आने शुरू हो गए। The food was contaminated by the chemicals we were using. सराउंडिंग्स भी कंटामिनेट होना शुरू हो गई। जो हवा थी, लोग जो आसपास रह रहे हैं, वो भी कंटामिनेटेड होना शुरू हो गए। इवन द वाटर, जहां वाटर जो बह के नदियों में आता था, वो भी केमिकल्स से भर गया, और सारा हमारा सी फूड, मरीन लाइफ सब कंटामिनेट हो गई। दैट इज पार्ट ऑफ केमिकल कंटामिनेशन। सो इससे एक अलग ही ट्रेंड शुरू हुआ बाद में। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में, देयर इज अ न्यू ट्रेंड गोइंग ऑन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, organic food. That organic thing is what? That is just use or production of crops and vegetables without the use of chemical. बिना केमिकल के, बिना कुछ खतरनाक केमिकल यूज किए हम लोग जो प्रोडक्ट्स को ग्रो कर रहे हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। तो केमिकल कंटामिनेशन इज आल्सो वेरी डिजास्टरस। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, हमारी जमीन खराब हो जाती है, पानी को टॉक्सिक बना जाता है। जब हमारे पास खाना आता है, तो जो मेन राइस है, दाल है, सब्जियां, धो के बनानी चाहिए। हो सकता है अभी भी केमिकल्स में हो, उसे टैक्सोलॉजी में लैब को भेजना चाहिए, जैसे कि थोड़ा टेस्टिंग हो जाए कि उसमें अंदर में केमिकल्स तो नहीं है। जो घास फूस खा के, जो चिकन, जो मुर्गियां है आसपास, या फिर बहुत सारे बकरी, लैम, ये सब खाती है, उनके पेट में भी जाता है, वो कंटामिनेट हो रही है। तो मीट इज आल्सो गेटिंग कंटामिनेटेड फ्रॉम दिस। दैट इज व्हाई वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक चिकन आने लगा है मार्केट में, ऑर्गेनिक दाल्स, ऑर्गेनिक मसाले। नाउ कमिंग टू द थर्ड मेजर कंटामिनेंट, दैट इज बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। हम लोग आजकल कोविड की एरा में हैं। कोविड इज अ वायरस दैट इज कंटामिनेटिंग आवर ओन बॉडीज। वो भी कंटामिनेशन, डिजीज आल्सो कंटामिनेशन। वायरस हमारी बॉडी कंटामिनेट कर रहा है, वो ऐसे चीजें प्रोड्यूस कर रहा है जिससे हमें और बीमार हो कर रहा है, हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। द सेम वे देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस जो हवा में चलते हैं, हवा में रहते हैं, जो खाने के ऊपर गिर सकते हैं, and that can contaminate the food. So biological contamination include bacterial, viral, fungal and other
organisms which are potentially very harmful for food and human being. आप कभी सोचते होंगे, आपने कभी देखा होगा कि जब हमने कभी खाना छोड़ दिया 2 घंटे बाहर, या फिर बुफे से खाना लौट के आया, हमने डाला नहीं, वापस वो बाहर ही पड़ा रह गया कभी, तो उसमें बदबू आने लगी। चिकन आप बाहर डाल के देखिए, बाहर छोड़ के देखिए, कभी 3-4 घंटे बाद में बदबू आने लगेगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया वहां पर। प्रोटीन, चिकन में प्रोटीन है, मॉइस्चर है, बैक्टीरिया विल इजीली ग्रो इन दैट। हवा में जो बैक्टीरिया है दो आर इनएक्टिव, जैसे उसे उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। सेम विद फंगस। फंगस बैठता है आपके स्टार्ची फूड्स पे, प्रोटीन फूड पे। आप देखिए कभी ब्रेड आपने बाहर छोड़ी हो मॉइस्चर में, तो उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, ब्लैक एंड ग्रीन स्पॉट्स आ रहे। वो क्या है? वो मोल्ड है। दैट मोल्ड इज आल्सो काइंड ऑफ फंगस। That is all about biological contamination, and it is very harmful to body also. हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं कि कैसे बायोलॉजिकल कंटामिनेशन को रोका जाए, एंड एज अ शेफ हमारा भी व्यू पॉइंट है कि हम कैसे इस कंटामिनेशन को रोक सकते हैं। हम किचन में ट्राई करते हैं, खाने को अच्छे से कुक करने की कोशिश करते हैं उस तरीके से जिससे कि हमारे फूड को सेव कर सके, स्टेरिलाइज कर सके। Most common are bacterial contamination जो होते हैं, such as Streptococcus, Salmonella, E. coli. They are hugely responsible for food poisoning. अब आप E. coli है जो ये पानी से फैलता है, या फिर Salmonella, ये बहुत ज्यादा कच्चे चिकन और पोर्क में पाया जाता है, and that is why it is not advisable. Rather it is not, मतलब हमें रोकना चाहिए रॉ चिकन खाने से, रॉ पोर्क खाने से, बिकॉज उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस या फिर सैल्मोनेला हो सकता है। ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी आपको बीमार कर सकते हैं। हम जब भी चिकन को कुक करें, पोर्क को कुक करें, अच्छे से कुक करें, दैट विल स्टेरिलाइज द फूड। हम जब भी मीट कुक करते हैं तो हम थर्मोमीटर लगा चेक करते हैं कि बीच तक गर्मी गई कि नहीं गई। That middle of the meat should be cooked above 70 degrees Celsius for at least 2 minutes. जब वो 2 मिनट में 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है, that food gets sterilized. That is very important. So as a chef, our prime duty is to sterilize the food, make the food safe from all the contaminants. हम शेफ कैप पहने, हम नेट्स पहने, हेयर में से बाल ना गिरे, छोटे नाखून रखें, नाखूनों को चेक करते रहे, हाथ को धोते रहे हर 2 घंटे 3 घंटे में, स्टेरिलाइज करें, केमिकल्स चेक करते रहे फूड में कि केमिकल्स तो नहीं आ रहे कहीं से, वाटर शुड बी क्लीन, बायो कंटामिनेशन को चेक करना है हमें खाने में। दिस इज ऑल बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन। And as a chef, it is our prime duty to do that. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगले पार्ट में जाएं, महात्मा गांधी को हम सब जानते हैं, बापू को हम सब जानते हैं। उन्होंने कभी कहा था, strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength. मतलब हम जीतने से स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलती है, जो स्ट्रगल किए हैं हमने जीतने के लिए, उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जितनी ज्यादा हम स्ट्रगल करते हैं जीतने में, उतनी ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी? क्योंकि हम अभी स्ट्रगल फेज में, हम सब स्ट्रगलर्स हैं, पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है कोरोना से, एंड दिस इज मेकिंग अस टफ। वी विल गेन आवर स्ट्रेंथ एंड वी विल डेफिनेटली डिफीट कोरोना एंड वी विल बाउंस बैक in a much stronger manner. हम जरूर वापस आएंगे अच्छे और मजबूत तरीके से, क्योंकि हमने स्ट्रगल की है। Now coming to our second part of our session, that is standardization. What different standards we follow in a kitchen? So one of the most important standard organization is International Organization for Standardization.
आईएसओ हम सबने सुना है नाम कहीं ना कहीं, चाहे होटल में सुना हो, चाहे हमने प्रोडक्ट पे देखा हो। तो आईएसओ is the world's largest developer of voluntary international standards. They have founded, they were founded in 1947, and since then they have published more than 23,800 different standards, international standards, covering almost all aspects of technology and business, including our own food. They provide a series of guidelines to companies and what is required of a quality system. एक अच्छा क्वालिटी सिस्टम बनाने के लिए जो गाइडलाइंस चाहिए हमें, वो गाइडलाइंस आईएसओ प्रोड्यूस करती है, आईएसओ प्रोवाइड करती है. In India, the standards are controlled by Bureau of Indian Standards, BIS, New Delhi, who publishes new as well as revised standard books. हम देख सकते हैं आईएसओ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है दुनिया में. 9001 देखिए क्वालिटी एश्योरेंस, 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, 18001 is for occupational hazards, 22,000 is for food safety, and they have many more. तो हर चीज के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है. हमारा जो ध्यान है दैट इज अपॉन 22,000. हम ये क्यों सोचते हैं कि आईएसओ होना चाहिए? आप मान के चलिए कि अगर आप किसी दिन फॉरेन कंट्री जाते हैं तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे कौन सा फूड जॉइंट अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कहां पे फूड सेफ मिलेगा आपको? बाय चेकिंग देयर सर्टिफिकेट्स. इफ दे आर हैविंग दैट लाइसेंस ऑफ आईएसओ और सर्टिफिकेशन ऑफ आईएसओ, दैट मींस वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं एंड देयर फूड इज सेफ. वैसे ही कोई फॉरेनर, कोई वेस्टर्न कंट्री से कोई बाशिंदा या कोई टूरिस्ट इंडिया आता है, या वेस्टर्न या फिर गल्फ से इंडिया आता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ खाना सेफ मिलेगा? हमें आईएसओ स्टैंडर्ड्स, आईएसओ सर्टिफाइड होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वहां पे आंख बंद करके हम जानते हैं कि हाँ, यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे होंगे. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस इन आवर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स. ये है क्या? ये एक सिस्टम है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फार्म से लेकर फोक तक या आपकी प्लेट तक हर जगह कवर करता है. इट इज सुटेबल फॉर एनी बिजनेस इन द एंटायर फूड चेन, इंक्लूडिंग interrelated organizations such as producers of equipments, packaging materials, cleaning agents, additives and ingredients. Even जो ingredients है, additives है, जो हमारी कटिंग चॉपिंग मशीन बना रहे हैं, इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, वो भी आईएसओ 22000 कराते हैं अपने यहाँ, जिससे कि ये पूरा फूड चेन कवर्ड रहे अंडर द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. और आपको मालूम है इसकी खासियत क्या है? आप किसी भी फूड को, किसी भी सीरियल को, आप किसी भी दाल को उसका ट्रेस कर सकते हैं ओरिजिन. जो फार्म है वो भी आईएसओ स्टैंडर्ड से चल रहे हैं. जहाँ पैकेज हो रही है या फिर स्टोरिंग हो रही है, वो सब आईएसओ सर्टिफाइड है. जहाँ जिस होटल में खाना आ रहा है वो आईएसओ सर्टिफाइड है. तो वी कैन इजिली ट्रेस द बैकग्राउंड ऑफ द फूड ऑल्सो. दैट इज व्हाई आईएसओ 22000 and is very important. The latest 2018 version है, it is equally important. हमने कई बार सुना है होटल में हिसाब के बारे में, मगर हम जानते नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हिसाब है क्या. हाँ, हिसाब हम कर लेंगे या फिर उसको फॉलो करते हैं, हम बात करते हैं, बट एक्चुअली में है क्या वो चीज? These are principles. ये कभी नासा और कभी अमेरिकन नासा जो कंपनी उन्होंने बनाया था अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए, उनके फूड के लिए, बट आजकल ये हर जगह फॉलो हो रहा है. आईएसओ हैज अडॉप्टेड देम, इवन आवर ओन एफएसएसआई हैज अडॉप्टेड हिसाब. तो ये है क्या? These are set of 7 different principles. First principle is
conducting a hazard analysis. Conduct a hazard analysis मतलब analyze the operation, identify, हम अपने ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करें, ऑपरेशन को एनालाइज करें और देखें कहां पे गड़बड़ी हो सकती है। जैसे स्टोरेज में गड़बड़ी हो सकती है, खाना जब हमारे होटल के अंदर आ रहा है तब गड़बड़ी हो सकती है, क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, हम खाने को कवर ना करें तो हो सकता है कुछ गिर जाए, फिजिकल हजार्ड हम रोक सकते हैं कवर करके। कहीं पॉल्यूटेड हवा तो एंटर नहीं करी किचन के अंदर, पॉल्यूटेड वाटर तो एंटर नहीं कर रहा किचन के अंदर। तो ये सब है हैजार्ड एनालिसिस। तो हमें अपने सिस्टम को एनालाइज करना होगा, यानी कोई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या क्या गलत हो सकता है हमारे किचन के अंदर। आजकल हम एज अ शेफ हमारा एक नजरिया बन गया है कि देखने का कि यहां से गड़बड़ी हो सकती है शायद, उसको हम होने से पहले रोकते हैं। Principle number 2 is identify critical control points. This principle identify the points in the operations that ensures control of hazard. जो hazard हो सकते हैं उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हमने बनाए हैं critical control points. खाने में कंटामिनेशन ना हो जाए, उसको अच्छे से कुक करना है, that is CCP. Storage of food, meat storage, that is a CCP. बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉर्डर हो गए, वॉक इन हो गए वेजिटेबल्स के, डिफरेंट हमें नॉन वेज वेज अलग अलग डीप है, चिलर है, वो सब सीसीपीज के अंदर आ रहे हैं। देन थर्ड प्रिंसिपल इज एस्टैब्लिशिंग क्रिटिकल लिमिट्स। वी हैव टू सेट लिमिट्स, लाइक मीट स्टोरेज होगा, रॉ मीट स्टोरेज होगा बिलो -18 डिग्री सेल्सियस। फूड को कुक करेंगे तो अबव 70 डिग्री सेल्सियस, दीज आर लिमिट्स। रीहीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस के अबव, दैट इज रीहीटिंग। ये सब डिफरेंट क्रिटिकल लिमिट्स हैं। वैसे ही स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल्स, स्टोरेज ऑफ मिल्क, इस सब के लिए अलग अलग लिमिट बनाए गए हैं। देन फोर्थ प्रिंसिपल इज मॉनिटरिंग सीसीपी, मतलब जो भी हम सीसीपी बनाते हैं उनको मॉनिटर करना, मतलब वो ऑपरेशन में है कि नहीं है, खाना अच्छे से कुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम स्टोरेज अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खाने को ढक्कन लगा के रख रहे हैं या क्लीन रैप करके रख रहे हैं, वो सब सही तरीके हैं, हम उसमें टैगिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दिस इज ऑल मॉनिटरिंग सीसीपी। फिफ्थ प्रिंसिपल इज करेक्टिव एक्शन। अगर हमें लग रहा है मॉनिटरिंग के टाइम कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, हो सकता है कोई कुक खाने को ढंग से पका नहीं रहा है, या खाने का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जा रहा है, या फिर हमारी कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया है, उसका टेम्परेचर सही नहीं आ रहा है, या फिर कोई रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सही नहीं आ रहा है, तो वी विल गो फॉर करेक्टिव एक्शन। हम मेंटेनेंस को बुलाएंगे मशीन ठीक करने के लिए, या फिर कोई कुक ढंग से काम नहीं कर रहा है उसको ट्रेन करेंगे, विल गिव हिम बेटर ट्रेनिंग कि भैया 70 डिग्री सेल्सियस ऊपर कुक करना है, फॉर 2 मिनट एटलीस्ट, फॉर 2 मिनट्स टू ढंग से कुक करना है, you need to boil milk, you need to boil water, ये सब हमें करेक्टिव एक्शन में आ रहा है। देन वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज सिक्स्थ प्रिंसिपल। इसका मतलब है हमें वेरीफाई करना है कि जो ट्रेनिंग हमने दी या फिर जो मशीन ठीक हो गया है वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, या फिर वो बंदे ने ट्रेनिंग को फॉलो किया कि नहीं किया। एंड एट लास्ट प्रिंसिपल नंबर 7 इज रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी रिकॉर्ड से बनाए हमने, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, आपके जो डीप फ्रिज है उसमें टेम्परेचर नोट करना है रोज हर घंटे, कुकिंग रिकॉर्ड्स, क्या क्या कुक किया, किस टेम्परेचर कुक किया, रीहीटिंग रिकॉर्ड्स, योर स्टोरेज रिकॉर्ड्स, स्टोरिंग टेम्परेचर के, इवन फूड रिकॉर्ड्स शुड बी देयर। और इनका जरूरत क्या है, हमें हर आईएसओ के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें साल में इंटरनल ऑडिट्स करने होते हैं बहुत सारे, आपके दूसरे डिपार्टमेंट आपको ऑडिट करेंगे, आप किसी और डिपार्टमेंट ऑडिट करेंगे, साथ के साथ हर साल आईएसओ ऑडिट करता है आके, वो डॉक्यूमेंट चेक करता है सारे, प्लस लाइसेंसिंग की टाइम में डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो इट इज अ वेरी फुल प्रूफ वे जहां पे आप हैजार्ड्स को रोक सकते हैं और आप किसी भी टाइप के कंटामिनेशन को चेक कर सकते हैं। Now coming to FSSAI, this is our homegrown, this is a
our government of India has set up an organization, authority under health and family welfare. It is an autonomous body that creates standards and benchmarks. ये जो authority है, that was established under Ministry of Health and Family Welfare. ये standard in Food Safety and Standard Act 2006 के तहत बनाई गई थी और 2008 में से काम करना शुरू कर दिया था. और ये क्या है? ये एक बॉडी है जो सारे फूड लॉज को गवर्न करती है. पहले क्या था? अलग-अलग मिनिस्ट्री अलग-अलग फूड प्रोडक्ट्स को गवर्न करती थी. उनको एक कर दिया गया, वन नेशन वन फूड लॉ के तहत. एंड नाउ इट इज प्रोवाइडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर फूड. कैसे खाना बनना चाहिए, किस टेम्परेचर कुक होना चाहिए, क्या प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी है. इट ऑल्सो इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन एनफोर्समेंट. कैसे इन्फोर्स करना है रूल्स को, लॉ को. वो चेक करते हैं, फूड टेस्टिंग करते हैं. फूड लैब्स क्रिएट किए उन्होंने, बहुत सारे लैब्स को उन्होंने इंटीग्रेट किया. And then manage food testing with standard testing methods and protocols. उन्होंने वो प्रोटोकॉल भी बनाए जिसके तहत फूड टेस्टिंग करनी है. So FSSAI is responsible for protecting and promoting public health through regulation and supervision of food safety. आप देख सकते हैं क्या क्या काम करती है FSSAI. It provides a legal framework for food safety, food production and distribution. अब जरूरी हो गया हर खाना जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पर FSSAI मार्क हो. इसमें FSSAI ने जरूरी किया है कि इंग्रेडिएंट्स लिस्ट हो, क्या क्या हम डाल रहे हैं, क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, एक्सपायरी डेट हर फूड पे जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, लीगल फ्रेमवर्क्स. इट प्रोवाइड्स training and food safety training and certification under FOSTOC. ये सब काम आपके FSSAI करता है. It also provides awareness, different awareness through posters, through billboards. Lot of awareness programs have been initiated under FSSAI. जो लोग लाइसेंस लेते हैं या रजिस्टर करते हैं अपने आप को, हर एक फूड जॉइंट, हर एक रेस्टोरेंट, होटल को लाइसेंस चाहिए होता है या फिर रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को FSSAI के तहत. एंड दे आर प्रमोटिंग अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस की सेफ फूड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड दे हैव डन प्रीटी वेल. दे हैव ब्रॉट आवर फूड स्टैंडर्ड्स टू वेरी हाई बेंचमार्क. एंड नाउ वी कैन से दैट हमारा खाना वेस्टर्न खाने के बराबर हो रहा है, एटलीस्ट इन फूड सेफ्टी. Our food is equally safe. We can see different posters provided by FSSAI. These posters of FSSAI should be placed in prominent places in kitchen. You can place them so that people can follow them while preparing food. So different practices we can adopt into ourselves. Apart from this, FSSAI provide different standards for dairy, fat, oil, fruits, meat, sweet and confectionery. Last year only they have started कि food and जो आपका मिठाई है, confectionery, उस पे भी expiry mark होगा. कैसे आपने प्रोड्यूस करना है, कैसे पैकेज करना है, that is all being governed by FSSAI. Development of standard is a dynamic process. So डायनेमिक प्रोसेस कैसे है? टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, फूड टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, उसको अडॉप्ट करना भी FSSAI के काम है. सो इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस. लेटेस्ट डेवलपमेंट इन फूड साइंस, फूड कंजम्पशन पैटर्न्स कैसे चेंज हो रहे हैं, चेंज इन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये सब जो फूड एनालिटिकल मॉडल्स हैं या मेथड्स हैं, ये सब अडॉप्ट कर रही है FSSAI. एंड इट इज प्रोवाइडिंग अ बेंचमार्क. It is acting as a regulatory body for food safety of highest standards, which is actually a game changer in our own industry. एक benchmark provide कर रही है और ये game changer है हमारी इंडस्ट्री के लिए. With that,
I would like to end the session for today. If you have any question regarding today's session, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो या फिर आप कुछ सोच रहे हो, कोई आपका सजेशन हो, प्लीज राइट इनटू द चैट बॉक्स. वी आर देयर टू आंसर. बिकॉज हम सब सोचते हैं कि यार ऐसे कुछ होता, कुछ पूछना था, हम कुछ रह जाता है हमारे पूछना. प्लीज राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स and we will definitely answer those. Our way forward, on 17 June we'll meet again, and it is very much mandatory to attend all the sessions for certification. And on 17th we'll be having again safety, hygiene and preservation and good practices. It is basically based on kitchen now. Safety kitchen में कैसे होनी चाहिए, hygiene side kitchen की कैसे होनी चाहिए, preservation कैसे होता है खानों का, कैसे हम preserve करते हैं, storage करते हैं, and all the good practices we follow in our own kitchens. And 24th June is general concerns and spirit of hospitality. If you have any doubts, any questions, you can ask on the chat box. Thank you very much. If you have any queries, you can even write me on the mail. Thank you very much, and we will meet again next week. Till then, keep safe and have a nice day. Thank you, Chef, for such an informative session. All the participants, we request you again that please attend the complete series for your certification. Next week at same time, we'll see you with the next topic. Anybody else who has forgotten to mention your name and email ID in the chat box, please put it down to mark your attendance for the day. Also, please take out some time to visit our official website of FHRAI and FHRAI IHM, which is full with information about what further initiatives we are coming up for the hospitality sector. Thank you so much for today. Have a good week ahead. See you next week at the same time with us, with our chef. So stay tuned with us. Thank you so much. Goodbye.